Hello everyone, my name is Madhav Agarwal and I welcome you to this new video on Supreme Court judgment. In this video, we'll be reading one-liner summaries for more than 80 Supreme Court judgments, and it will be relevant for different competitive examinations, and especially UPSC Civil Service Examination GS papers. Before we begin, I'd like to briefly introduce myself. Uh, in this UPSC journey, I have given three names as well as first interview, which was last year itself. Uh, And over this journey, I have realized the importance of these Supreme Court judgments, especially for GS Paper 2 Quality section. So, for whom is this video relevant? This video is relevant for aspirants who have at least once read their quality content for mains, because in this video we'll be discussing only summary and not detailed explanation. Second is also the veterans who seek to boost their score in GS especially. Why read and learn Supreme Court judgments? Three basic reasons. First is it is a key to increase the marks in GS 1, 2, 3. When you quote these Supreme Court judgments in your answers, you'll get extra cherry points for these. However, their usage is different, uh, which is discussed later for GS 2 versus GS 1 and 3. Second reason it is used by toppers. Frequently, they quote Supreme Court judgments much more heavily in GS 2 politics section. And third, and the most important reason is the PYQs, where UPSC is directly asking you to quote different case laws and asking you questions on a particular case law as well. My own experience, I have tried to use them consciously in my 2023 attempt, unlike the previous attempt, because in this attempt I thoroughly prepared these judgments in detail and practiced quoting them in my tests as well as answer writing practices. So, as we discussed, the first reason for learning this video was PYQ. So, I have quoted some selected PYQ references. Uh, into 2023 itself, we got three questions from directly asking about case laws in the polity section GS paper 2. तो ये जो तीन क्वेश्चन थे इसमें आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में लास्ट लाइन में लिखा है इलस्ट्रेट विद स्पेशल रेफरेंस टू द एक्सपांडिंग होराइजन ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली अपने को बताना था कि कैसे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विच इज आर्टिकल 21 इट इज एक्सपांडिंग एंड इट हैज मेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अ लिविंग इंस्ट्रूमेंट. यहाँ पे आप when we quote more and more case laws to show how right to life has expanded, it is including right to marry, right to privacy, right to free legal aid, right to food. So when you quote these points, you already know them, but if you substantiate them with case law, it will be much more beneficial. The second question, again, explain the constitutional perspectives of gender justice with the help of constitutional provisions, one, and case laws. Again, the question is directly asking you to quote case laws. Third question, this was the first question of the paper. Constitutionally guaranteed judicial independence is a prerequisite of democracy. Comment. So, even in this question, you have to indirectly use Supreme Court judgments wherever possible, because judicial independence, to show judicial independence, it would be much more beneficial if you quote more and more Supreme Court judgments here. Because without it, the principles of democracy, the rule of law, protection of individual rights, accountability, checks and balance, cannot be effectively upheld. So, for each of these points, you can quote some of the case laws that we learn in later part of this video. The rule of law, protection of individual rights, how judicial independence was ensured there for upholding the democracy as a whole. Same goes for 2022, where how constitutionalization of environmental problems by the Supreme Court. And the question statement says, with the help of relevant case laws. Again, discuss the legality of promulgation of ordinances by the governor. Again, you have to quote case laws here. Constitutional morality,
with the help of relevant judicial judgments, judicial decisions. 2017, uh, we saw two questions directly asking me to talk about a specific case, which was a major issue back then. NJAC, as well as the latest judgment of Supreme Court on right to privacy. 2015 also discussed in the light of Article 21, judgments of the apex court in this regard. These are the questions which are direct in nature, but there is an indirect usage too in multiple questions on GS2. Example, questions on federalism. You have to quote some case law, governor, or the question comes on death penalty. So how will the usage of case law will be different in GS2 versus GS1 and GS3? In GS2, you'll have to explain the case law in a little more detail, maybe 1.5 lines with the case law, if the content allows, or just quoting them. But in GS1 and GS3, suppose you are quoting some case laws there, so you have to just mention the case law in the bracket. In those papers, there won't be a need to explain them in detail compared to GS2. Another reason which we discussed why these case laws are relevant is they are used by doctors. So for that, we'll be referring to Bank to Garima Lohia का answer copy over here. ये जो आंसर कॉपी इन्होंने 1 सितंबर 2022 को लिखा था और उसी मंथ 16 तारीख को मेंस था, तो ये काफी क्लोज है एग्जाम डेट की कॉपी, तो यही स्टाइल उन्होंने नेचुरली फॉलो भी करी होगी एग्जाम में. आई थिंक ये डेट आपको थोड़ा ध्यान रखने से, आप किसी भी टॉपर की कॉपी देख रहे हो तो जितना एग्जाम की क्लोज होगा उतना ही वो उनका नेचुरल फ्लो बना होगा. फाइनल स्कोर GS2 में इनका 131 था, उसमें केस लॉज और वैल्यू एडिशन उनके कंटेंट ने उनको काफी हेल्प किया होगा. सो मैंने हाईलाइट किया उन्होंने कहाँ कहाँ केस लॉज यूज करें. बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, केशवानंद भारती, जुडिशियल रिव्यू, मिनिमम केस. रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट कोर्ट इन अबेयंस सेक्शन 124 सेडिशन की बात कर रहे हैं. यहाँ पे केस लॉ डाला है संस्कार मराठा, केदारनाथ, श्रेया सिंह जजमेंट, SC in Keshwananda Bharati, once again, Shirur Mutt case of 1954, recently Karnataka High Court, Supreme Court, Sabrimala, Triple Talaq, death penalty में बच्चन सिंह case, मच्छी सिंह case, Shatrughan Chauhan. So we saw just in 6 answers, she has quoted a lot of case laws. So this shows how quoting different judgments, if you could remember them in a little summary, we could fetch more marks in our GS papers. So my method of remembering judgments is a two-way learning. First, you read the judgments with their one-line summary through revisions, continuous revisions, and making funny mnemonics. We discuss those mnemonics wherever possible. Next is reverse recalling, which many students miss. So usually aspirants क्या करते हैं, कोई केस लॉ करते हैं, उनको याद रहता है केस लॉ का क्या मीनिंग था, उसमें क्या आउटकम था और कहाँ पे वो रेलेवेंट है, बट वो लोग उसको रिवर्स रिकॉल या फिर रिवर्स कनेक्ट नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल उन्हें पता होगा कि दिल्ली का केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने उधर बात करी थी जो LG है और लेजिस्लेटिव असेंबली है दिल्ली की, उनकी पावर्स के बारे में. ये केस सबको पता होगा, बट अगर आप इसको रिवर्स रिकॉल करके रखो कि यार जब भी फेडरलिज्म का क्वेश्चन आएगा तो वहां मैं एक कोट करूंगा. सिमिलरली वुमेन के रिलेटेड आपको बहुत सारे केस लॉस पता होंगे, बट आपको रिवर्स रिकॉल उसको ऐसे करना है, वुमेन का कुछ क्वेश्चन आएगा तो दीज आर द 4-5 केसेस दैट आई विल. सोशल जस्टिस पे कोई क्वेश्चन आएगा तो दीज आर 4-5 केसेस. एनवायरमेंट का क्वेश्चन आएगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का आएगा, डेथ पेनल्टी का आएगा. सो दिस वे यू हैव टू रिवर्स रिकॉल द केस. इसके लिए भी मैंने एक तरीका बनाया था, कुछ डिस्कस करेंगे. बिफोर वी बिगिन, एक डिस्क्लेमर है, मेरा बैकग्राउंड इज नॉट इन 4 एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ और इट्स टेक्निकलिटीज. ये डिटेल स्टडी के लिए नहीं है, इसका एम सिर्फ आपको एक लिमिटेड कंटेंट देने की जरूरत है. आप कोई भी इसमें एनॉमली मिले तो आप प्लीज हाईलाइट करिएगा, उसको रिकरेक्ट करना. लिमिटेड कंटेंट मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको सिर्फ 1 या 1.5 लाइन लिखना है उसकी. जो PDF अपन डिस्कस करेंगे जजमेंट्स की, उसका क्रेडिट मेरे फ्रेंड को भी जाता है विपुल सर, जिसके साथ बैठ के ही मैंने ये सारे जजमेंट्स और डिस्कस करके बनाए थे.
ये पीडीएफ हैंड स्क्रिबल्ड है, तो अभी आप सबसे पहले फोकस कर सकते हैं सिर्फ सुनने में। लेटर आप बैठ के खुद के इसके नोट्स बना सकते हैं, कैटेगराइज करके पॉसिबल। तो ये है वो हैंड रिटन जजमेंट्स का पीडीएफ। इसमें अपन फर्स्ट सेक्शन में स्टार्ट करेंगे, 2 पेज में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट केसेस अपन 3 केसेस देखेंगे जो डेथ पेनल्टी आर्टिकल और क्लेमेंसी पावर्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो आर्टिकल 72 में दे रखे हैं क्लेमेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। जो मारू राम केस था उसमें बोला था कि जो क्लेमेंसी पावर्स हैं प्रेसिडेंट के, विच इज दे विल बी ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। प्रेसिडेंट का खुद का डिसीजन नहीं होगा, बट जो कैबिनेट उसको बोलेगा उसको वो डिसीजन फॉलो करना पड़ेगा। मारू राम केस। सेकेंड इज बच्चन सिंह केस। बच्चन सिंह केस में डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर को स्टैब्लिश किया गया था डेथ पेनल्टी के लिए। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही डेथ पेनल्टी को यूज किया जाएगा, और ये अपनी एथिकल साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एथिकल साइड ऑफ गवर्नेंस एंड एथिकल साइड ऑफ जुडिशरी को भी दिखाता है। नेक्स्ट केस है मच्छी सिंह केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्ड यूज किया था, कलेक्टिव कंसाइंस। कलेक्टिव कंसाइंस का मतलब है पूरी सोसाइटी का जो कंसाइंस है वो हिल जाए, उस केस में आप डेथ पेनल्टी का यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल निर्भया रेप केस, या फिर ये मच्छी सिंह केस। सब मच्छी सिंह केस में यह हुआ था कि ओवर द नाइट Machi Singh and his 11 companions killed around 17 people because of a family feud. So, एक रात में जब इतने सारे लोगों को मार दिया गया था, then Supreme Court invoked this collective conscience and awarded death penalty to 4 people and life imprisonment for the others. So, ये टर्म आप यूज कर सकते हो, कलेक्टिव कंसाइंस जब सोसाइटी की शेप होगी तब होना चाहिए, रेयर ऑफ द रेयर होना चाहिए, और क्लीमेंसी पावर्स एडेड एडवाइस को। नेक्स्ट इज एडीआर 2002। इसमें एडीआर 2002 में कुछ टर्म्स यूज किए जो आप अपने आंसर्स वगैरह में यूज कर सकते हो। उन्होंने बोला था अ गुड डेमोक्रेसी मींस नोइंग सिटीजन, और ये एफ ओ ऐसे लिखा है, इट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स राइट टू इम्पार्ट एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन। सेडिशन के क्वेश्चन आप आ सकते हो, आरटीआई गवर्नेंस में, एथिक्स में आप यूज कर सकते हो। ये अ गुड डेमोक्रेसी मस्ट हैव नोइंग सिटीजन। जब नोइंग सिटीजन नहीं होगा तभी वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। नेक्स्ट इज अमित साहनी केस। साहनी जी, साहनी जी और शाहीन बाग, साहनी शानी, साहनी शाहीन बाग, इस तरीके से आप याद रख सकते हो उसको। इस केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इनडेफिनेट ऑक्यूपेशन ऑफ अ पब्लिक रोड इज अनएक्सेप्टेबल। शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उसमें रोड को ऑक्यूपाई किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इनडेफिनेट ऑक्यूपेशन इज अनएक्सेप्टेबल। बट सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड भी किया था राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट को। तो स्टेट को सपोर्ट करते हो, आपको कोई स्टेटमेंट लिखना है तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन यूज कर सकते हो। फिर ये MKSS 2018 का केस है, इसको भी आप कोट कर सकते हो अपने ऐसे में या सेडिशन में टॉपिक में। बोला था डेमोक्रेसी एंड डिसेंट गो हैंड इन हैंड, ये इसमें यूज किया था। फिर से उन्होंने बोला था लिमिटेड यूज ऑफ एरिया होना चाहिए पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए। MKSS इज मजदूर किसान शक्ति संगठन। ओके, तो डेमोक्रेसी एंड डिसेंट गो हैंड इन हैंड, इसको आप कोई ऐसे में डाल सकते हो, कोई क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट केस था अनुराधा भसीन की। अनुराधा भसीन केस में बोला था कि राइट टू इंटरनेट एक्सेस को फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज किया था। इंटरनेट एक्सेस करना भी एक फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है ये। अगर इनडेफिनेट बैन है इंटरनेट का तो इट विल बी अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट 19(1)(a which is freedom of speech and expression and 19(1)(g which is the right to profession। इनडेफिनेट बैन नहीं होना चाहिए इंटरनेट का, ये अनुराधा बसीर केस में एस्टैब्लिश किया था, और टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दिया था, जो आगे अभी अपन भुट्टा स्वामी केस में डिस्कस। नेक्स्ट केस है MC मेहता केस। MC के मेहता केस में एस्टैब्लिश किया गया था कि चिल्ड्रन शुड नॉट बी डिप्लॉयड इन हजारदस जॉब। आर्टिकल 21 की स्कोप को एनलार्ज किया था टू इंक्लूड राइट टू एनवायरनमेंट। आर्टिकल 21 का क्वेश्चन
2023 में भी आया था और इन्वायरमेंट का क्वेश्चन जो है 22 में आया था। ये खुद लॉयर थे, इन्वायरमेंटलिस्ट थे, मैनी केसेस उन्होंने लड़े भी थे। एक चीज ये भी स्टैब्लिश होती है इस केस में, कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए बच्चों को अबाउट एनवायरमेंट। इन्वायरमेंट से एक और केस था संबित मेहरा केस, उसमें बोला गया था पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल। ये दो केसेस आप एनवायरमेंट के लिए डायरेक्टली याद कर सकते हो, एमसी मेहता केस एज वेल एज संबित मेहरा केस। ये क्वेश्चन आया होगा केस में। नेक्स्ट केस इज केस पुट्टास्वामी केस, राइट टू प्राइवेसी 2017 में आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। इसे बोला था राइट टू प्राइवेसी इज एन इंट्रिंसिक टू लाइफ एंड लिबर्टी व्हिच इज आर्टिकल 21। तो राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर आर्टिकल 21। बॉडीली ऑटोनॉमी इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू प्राइवेसी। जो अपनी बॉडी है उसके रिगार्डिंग एक पर्सन को ऑटोनॉमी है, उसमें किस तरीके के उसको डिसीजन लेना है उसके, तो ये भी राइट टू प्राइवेसी में आता है। तो मैरिटल रेप में आप इसको कोट कर सकते हो। जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके केस में भी आप इसको कोट कर सकते हो, क्योंकि उनको राइट ऑफ सेल्फ आइडेंटिफिकेशन नहीं दिया गया था। इसी केस लॉ में अपहेल्ड द यूज ऑफ आधार फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज, ये भी स्टेट के फेवर में रहा था पॉइंट। इसमें दिया था डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बेसिकली क्या बोलता है कि जो राइट टू प्राइवेसी है, लाइक एवरी अदर राइट, वो एब्सोल्यूट नहीं है। तो राइट टू प्राइवेसी है, उसको आप अगर 3 टेस्ट पास होते हैं या 3 कंडीशन पास होती है तब आप राइट टू प्राइवेसी को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। क्या है 3 कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन होना चाहिए कि लीगैलिटी। लीगैलिटी मतलब लेजिस्लेटिव मैंडेट होना चाहिए, असेंबली पार्लियामेंट इसको पास करना चाहिए, ना कि कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर राइट टू प्राइवेसी को ब्लॉक करना। फर्स्ट। सेकंड है कि लेजिटिमेट स्टेट पर्पस होना चाहिए, उसका इंटेंशन जो है वो लेजिटिमेट होना चाहिए और एक स्टेट का पर्पस होता है वो होना चाहिए उसको, जो डिसीजन रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। थर्ड, प्रोपोर्शनैलिटी होना चाहिए स्टेट एक्शन की। प्रोपोर्शनैलिटी इन द सेंस जो लीस्ट इंट्रूसिव ऑफ द अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स यूज करना चाहिए, जिससे सबसे कम से कम प्राइवेसी इन्वेड हो। तो ये 3 टेस्ट पास होंगे तब आप राइट टू प्राइवेसी को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लालसा जजमेंट। लालसा जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर्स को थर्ड जेंडर डिक्लेयर किया था, इनको राइट टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन दिया था और सजेशन दिया था कि इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन एंड जॉब्स में। तो अभी नया एक्ट भी आया था, राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पीपल एक्ट, उसमें भी रिजर्वेशन नहीं दिया था। तो आप कोई क्वेश्चन में रिजर्वेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड जॉब्स को एज अ वे फॉरवर्ड यूज कर सकते हो, लालसा जजमेंट को कोट कर सकते हो वहाँ पे। तो ये आपके GS2 के जस्टिस सेक्शन में भी आ सकता है। रामलीला मैदान केस था, उसमें बोला था कि पीसफुल राइट टू पीसफुल असेंबली इन प्रोटेस्ट, ये अपन ने अमित शाह केस में भी देखा था, MKSS केस में भी देखा। बैन ऑन दिवाली क्रैकर्स नॉर्मल है। फिर नवतेज सिंह जौहर केस में बोला था, उन्होंने डीक्रिमिनलाइज किया था होमोसेक्सुअलिटी को। इस केस लॉ में आर्टिकल सेक्शन 377 में होमोसेक्सुअलिटी वाज अ क्राइम। इसको याद रखने के लिए आप याद रख सकते हो करण जौहर वाज द प्रोड्यूसर ऑफ मूवी दोस्ताना व्हिच टॉक्स अबाउट LGBT एंड इट्स इश्यूज। तो नवतेज जौहर, करण जौहर, इससे आप याद रख सकते हो इसको, सिंपल। नेक्स्ट केस लॉ है जोसेफ शाइन केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 497 को शट डाउन किया था, which dealt with adultery because it violated Article 14, 15, and 21. Second aspect was women are equal participant in marriage, and doctrine of coercion is invalid. तो doctrine of coercion क्या होता है कि legally seeing women as a property of men, जो legal aspects हैं women के decisions के, वो as connected to his husband देखा जाता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कल्चर को इनवैलिड बोला था इस केस में। 2023 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था वुमेन से क्या केस लॉ से इवॉल्व हुआ है, तो वहां पे अपन इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन केस, या फिर इसको फेमसली सबरी वाला केस बोला जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था डिवोर्शन कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो जेंडर के बेसिस पे आप डिवोर्शन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते।
notion that menstruating women are polluted and impure is a form of untouchability. Menstruating women को सबरीमाला टेम्पल में एंट्री अलाउ नहीं थी, तो उस केस में बोला है कि ये पॉल्यूशन और इम्प्योर का कॉन्सेप्ट है एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 से लिंक किया है। एक पॉइंट इन्होंने बोला था, नो कस्टम कैन क्लेम सुप्रीमेसी ओवर द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है वो सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन कौन से मॉरल से ड्रिवन है, कस्टमरी मोरालिटी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। वो इक्वल देखता है मेन और वुमेन को, वो प्रिवेल करेगा। नेक्स्ट केस लॉ है एससी कॉमन कॉज केस। तो इसमें राइट टू डाई विद डिग्निटी को फंडामेंटल राइट बनाया गया था। यूथेनेशिया की केस में यूथेनेशिया का केस बोला जाता है इसको, तो राइट टू डाई विद डिग्निटी तो फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज किया था। सबका कॉमन दुखड़ा है, एक कॉमन दुखड़ा है राइट डाई। डाई मरना एक ऐसी चीज है जो सबका एक कॉमन दुखड़ा है, उस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। यूथेनेशिया एथिकल डिलेमा या एथिक्स के क्वेश्चन में भी आपको इसको कभी कोट करना पड़ सकता है डायरेक्टली यूथेनेशिया पे क्वेश्चन। नेक्स्ट इज सुभाष अग्रवाल केस। इसमें ऑफिस ऑफ सीजे आया था, उसको आरटीआई के एम्बेट में ले आए थे। तो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की क्वेश्चन लिख सकते हो, आरटीआई क्वेश्चन में आप कॉस्ट लिख सकते हो उसको। प्रिंसिपल कंसिडरेशन शुड बी पब्लिक इंटरेस्ट एंड जजेस आर नॉट अबव द लॉ। इंफॉर्मेशन सीकिंग शुड बी कैलिब्रेटेड। सब कुछ नहीं मिलेगा इंफॉर्मेशन, इट विल बी कैलिब्रेटेड, ये भी बोला था। तो बैलेंस करना है। Right to know under RTI was not absolute and balance is required with right to privacy of individual judges. ये आपको ध्यान रखना है, बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे हैं। आरटीआई का क्वेश्चन है, उसमें इसको यूज कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट केस लॉ है डीएवी कॉलेज ट्रस्टीज। इसमें एनजीओ को आरटीआई एक्ट के अंदर लेके आए थे, ये भी आरटीआई में आ जाएगा। कोई एनजीओ का क्वेश्चन है गवर्नमेंट्स में, उसमें आप इसको कोट कर सकते हो। ये हैज एनजीओ अंडर द आरटीआई एक्ट एज पर द डीएवी केस, so on so on. एनजीओ पूरा था, टू मेंटेन रिकॉर्ड्स। एनजीओ का एक और केस है नोअल हार्पर, जो अपन बाद में देखेंगे अभी। ट्रिपल तलाक केस या फिर इसको शायरा बानो केस भी बोलते हैं। इसमें इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था और इन्होंने सजेस्ट किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि लेजिस्लेशन लेके आई, गवर्नमेंट को बोला था। यही रोल है जुडिशरी का, सेपरेशन ऑफ पावर को मेंटेन करना, रिफॉर्म लाने के लिए। खुद लॉ नहीं बनाया, लेजिस्लेचर को बोला कि आप लॉ बनाएंगे। शाह बानो केस, यूसीसी वुमेन, इस केस में अपने को करना है, ये आगे अपन डिटेल में देखेंगे। शुरूर मठ केस, जो राइट टू रिलीजन है, आर्टिकल 25 टू 28, उसमें इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी दिया। तो राइट टू रिलीजन तो प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन, बट कौन से राइट्स को प्रोटेक्ट करता है या कौन से रिलीजियस प्रैक्टिस को प्रोटेक्ट करता है, उसको डिटरमाइन करने के लिए शुरू मत केस में एस्टैब्लिश किया था डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी। सारी प्रैक्टिसेस प्रोटेक्टेड नहीं, सिर्फ जो एसेंशियल प्रैक्टिसेस हैं उस रिलीजन की वो प्रोटेक्टेड है। फॉर एग्जांपल अभी हिजाब केस में इसका रेलेवेंस था। पास्ट में ये तांडव डांस जो था, तो आनंद मार्ग सेक्ट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया था कि तांडव डांस इज नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। सिमिलरली वन ऑफ द केस लॉ सुप्रीम कोर्ट हैज एस्टैब्लिश्ड दैट सिख बियर्ड is okay and it is a part of their essential practice. हिजाब पे अभी क्लियर वर्डिक्ट नहीं आया, स्ट्रिक्ट वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट का, वो भी केस लॉ पे अपन नीचे देखते। नेक्स्ट केस है अभिराम सिंह केस। इसको बोलता है an election can be annulled if candidate seeks vote in the name of their religion or that of their voters. तो आरपीए में अपन इसको कोट कर सकते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म है, एक तो रिफॉर्म लाने की कोशिश करेंगे। और इसको याद कैसे रख सकते हैं अपन, अभिराम सिंह, अभिराम राम और यहाँ पर रिलीजन, तो उस तरीके से आप इसको लिंक कर सकते हो। अभिराम सिंह केस, रिलीजन को यूज करके वोट नहीं देना। गोरखनाथ केस अपन नीचे डिटेल में देखेंगे। मिनरवा मिल्स केस और गोरखनाथ केस ये सब लिंक्ड है, इसको एक सीक्वेंशियल वे में डिस्कस करेंगे। बट बेसिकली मिनरवा मिल्स केस बोला था कि एफआर और बीपीएसपी वो कॉम्प्लीमेंट्री, और
Absolute priority to one will disturb the harmony of the constitution. We have to balance it. Constitution is supreme, not parliament. उसी बेसिक सेक्शन डॉक्यूमेंट के एस्पेक्ट पे ऊपर लिख सकते हैं. सॉरी. नेक्स्ट इज जो अमेंडिंग पावर्स है कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट के, वो भी लिमिटेड है अंडर आर्टिकल 360. ये दोनों पॉइंट्स अपन बेसिक सेक्शन डॉक्यूमेंट में लिख सकते हैं. एफआरडीपीएस पे क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली मिनर्वा मिल्स केस के बारे में अपन लिखेंगे. नेक्स्ट is the case law on federalism. So government of NCT of Delhi 2018 इसमें बोला था कि दिल्ली गवर्नमेंट के पास पावर है एक्सेप्ट फॉर लैंड, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर. सेपरेशन ऑफ पावर के जिसको हम बात कर सकते हैं एलजी और असेंबली, एग्जीक्यूटिव और असेंबली की दूसरी पावर. सेकंड इज इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली डोंट रिक्वायर कॉन्करेंस ऑफ एलजी हु ओनली नीड्स टू बी इन्फॉर्म्ड. सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये जो लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर है, इसके अलावा कोई मैटर है तो उसमें एलजी का कॉन्फरेंस या परमिशन टाइप नहीं चाहिए, आपको सिर्फ उनको इन्फॉर्म करना है. ये सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरलिज्म, सब में भी आप इनको यूज कर सकते हो क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन जो डायरेक्टली यूज होगा विच इज एसआर बोमई केस. एसआर बोमई केस में 5 पॉइंट्स मोस्ट रेलेवेंट थे. सबसे पहले लिखा था आर्टिकल 356 which is president's rule emergency. It has to be used in extraordinary situation and as a last resort. Government question मतलब लिख सकते हैं. Second लिखा था primacy should be given to the floor test to determine whether the government has confidence or not. Supreme Court has to use. Supreme Court said that governor has to give primacy to the floor test. आप floor test कराओ, उससे डिसाइड करो कि गवर्नमेंट के पास कॉन्फिडेंस है. थर्ड, फेडरलिज्म एज अ बेसिक स्ट्रक्चर. फेडरलिज्म इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन. केशवानंद भारती केस में बोला था, इस केस में बोला था कि फेडरलिज्म इज आल्सो अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. या कंक्लूजन में डाल सकते हो, इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में डाल सकते हो. ऐसा दोनों केस. स्टेट्स आर सुप्रीम इन द स्फीयर. जिस स्फीयर में स्टेट्स ऑपरेट कर रहे हैं उसमें स्टेट्स भी सुप्रीम है और बैलेंस है स्टेट और सेंटर के बीच में. फिफ्थ पॉइंट में बोला था कि सेक्युलरिज्म इज आल्सो अ बेसिक फीचर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन. इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन. रिमेनिंग 5 पॉइंट्स है. फेडरलिज्म में भी तो केस लॉ इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है ये विशाखा एंड अदर्स में. इसमें हमने गाइडलाइंस इशू करे थे फॉर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट because it violates Article 19(1)(g) profession and harms the female labor force participation. Posh Act आया था इसके बाद पार्लियामेंट. निर्भया केस में अपन देखा था करेक्टिव कंसाइंस, अच्छी सी केस में था और वोट किया था एकदम. नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट केस है नबम रेबिया केस. गवर्नर का जो डिस्क्रिप्शन होता है आर्टिकल 163 में वो लिमिटेड है, ये बोला था इसमें. सेकंड एस्पेक्ट बोला था कि एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट पे वो ऑपरेट करें. तो गवर्नर रिलेटेड क्वेश्चन आता है, उसकी पावर लिमिटेड है, ये अपने को बताना है. डिस्क्रिप्शन इज नैरो एंड कांट समन विदाउट एड एंड एडवाइस. हाउस को समन तभी कर सकते हैं जब एड एंड एडवाइस मिला हो कैबिनेट से. गवर्नर के क्वेश्चन में अपन इसको डाल सकते हैं. सेकेंड एस्पेक्ट इसमें जो बोला था कि स्पीकर फेसिंग नोटिस ऑफ रिमूवल अंडर नोटिस ऑफ रिमूवल अगर फेस कर रहा है स्पीकर खुद, तो ही कैनॉट डिसाइड, ही और शी कैनॉट डिसाइड अपॉन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द अदर लेजिस्लेचर. जो और दूसरे मेंबर्स हैं उसका डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड नहीं कर सकता. तो स्पीकर के केस में अपन कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें नबम रेबिया केस को अपन कोट कर सकते हैं.
चलिए बीपी सिंगल केस है, इसमें पावर टू रिमूव गवर्नर कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड इन आर्बिट्ररी मैनर। गवर्नर की इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है, आर्बिट्ररी मैनर में आप नहीं कर सकते। गवर्नर को हटाएंगे तो हटा के उसको सिंगल कर देना, इसलिए बीपी सिंगल सिंगल कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। सेडिशन लॉ रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट केस लॉ है। सबसे पहले केदारनाथ सिंह केस हुआ था कि सेडिशन के लिए क्रिमिनलाइज तभी करेंगे जो वर्ड्स उन्होंने यूज करे इट्स इंटेंडेड टू डिस्टर्ब द पब्लिक पीस बाय वायलेंस। तो वायलेंट इन्वोक कर रहा है मेथड, तब अपन यूज करेंगे केदारनाथ सिंह। क्लियर, क्रिटिसिज्म को नहीं कोई यूज करेंगे सेडिशन। सो रिसेंटली एसजी मोहम्मद के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सारे रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर को सस्पेंड कर दिया था अंडर 124 ऑफ आईपीसी व्हिच इज सेडिशन। उन्होंने कहा था जब तक ये रिफॉर्म नहीं आ रहा है इसमें, अब तक कोई भी इसमें एफआईआर नहीं है, क्योंकि ऐसे केसेस में भी एफआईआर रजिस्टर हुई थी जिसमें वायलेंस इन्वोक नहीं हो रही थी किसी के वर्ड से। दो इंपॉर्टेंट केस हुए थे, रामनाथ सिंह केस और एसजी मोहम्मद के केस। नेक्स्ट है इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस रिलेटेड 4 केसेस जो 1981 से 2015 तक रिवॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट जजेस केस जो था उसमें बोला था कि कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट ऑफ जो जजेस है दैट इज डन बाय द प्रेसिडेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ जजेस। तो कंसल्टेशन डज नॉट मीन कॉन्फ्रेंस, सिर्फ डिस्कशन करना, एक्सचेंज ऑफ व्यूज करना। ऐसा नहीं कि कंकरेंस है कि जुडिशरी की चलेगी, ऐसा नहीं। सिर्फ कंसल्टेशन डज नॉट मीन कंकरेंस, कंकरेंस नहीं होना चाहिए, जस्ट एक्सचेंज ऑफ व्यूज। तो इस केस से क्या हुआ था, ऑलमोस्ट 12 साल तक 1981 टू 1993 एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी मेंटेन रही थी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की। सेकंड केस आया, सेकंड केस में बोला कि जो एडवाइस टेंडर करते हैं सीजीआई से दैट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। एंड यहाँ पे कोलिजन सिस्टम आ गया था सीजीआई प्लस 2 जजेस का। तो याद कैसे रखेंगे, सेकंड जजेस केस और कोलिजन आया था सीजीआई प्लस 2, सेकंड 2। थर्ड जजेस केस में बोला था कंसल्टेशन रिक्वायर्स प्लूरैलिटी ऑफ जजेस। तो कोलिजन को और एक्सपांड कर दिया था सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस को इंक्लूड किया। तो सेकंड केस में बोला था कि बाइंडिंग होगी और आपको इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं मिलेगा सीजीआई का, आपको कोलिजन लेना है, बट सीजीआई प्लस 2 था। थर्ड जजेस को उसको सीजीआई प्लस 4 कर दिया। और फोर्थ जजेस केस था अपना एनजेएसी का, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आई थी, उसको शट डाउन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में। इसको भी फोर्थ जजेस केसेस में बोला जाता है। तो अब इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है आपको डायरेक्टली अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का, तो आप एक हॉरिजॉन्टल फ्लो चार्ट भी बना सकते हो क्वेश्चन में, जिसमें आपने फर्स्ट जजेस केस उसका ब्रीफ पॉइंट लिख, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, फोर्थ जजेस केस इन हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। अगर डायरेक्टली आज नहीं है तो एक कम स्पेस भी लेगा, मार्क्स भी अपने बढ़ेंगे। नेक्स्ट एस्पेक्ट इज एल चंद्र कुमार केस। एल चंद्र कुमार केस में ट्रिब्यूनल्स होते हैं जुडिशियल सिस्टम में जो लाए गए थे, उनको बोला था कि दे विल रिमेन अंडर द सुपरविजन ऑफ द हाई कोर्ट्स एंड नॉट पैरेलल टू हाई कोर्ट। तो जो ट्रिब्यूनल्स आए हैं जस्टिस सिस्टम में, हाई कोर्ट के सुपरविजन में रहेंगे। तो ट्रिब्यूनल्स की जो अपील होगी वो हाई कोर्ट पे जाएगी। इस केस का बोला था बेसिकली। स्वप्न त्रिपाठी केस अपन एथिक्स ई कोर्स में लिख सकते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था लाइव स्ट्रीमिंग और एंड वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स। तो ये ट्रांसपेरेंसी, एथिक्स में आप लिख सकते हो ट्रांसपेरेंसी कैसे प्रमोट कर रहा है इंस्टीट्यूशन, लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग, पब्लिक हैज द राइट टू नो। और एक इन्होंने टर्म यूज किया है सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। सनलाइट में जैसे ट्रांसपेरेंट हो जाती है रोशनी से, उस तरीके से यूज हुआ है स्वप्न त्रिपाठी केस में कि आप लाइव स्ट्रीमिंग करो, वीडियो रिकॉर्डिंग करो, इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिसइंफेक्टेंट और मेंटेन ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इसके दो केस है, प्रज्वल बोरगोई केस एंड जयदर्शन केस। प्रज्वल बोरगोई केस में बोला गया था टेस्ट फॉर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ओओपी, इसको आउटलाइन किया था। क्या टेस्ट होगा कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है,
उसके हिसाब से देखेंगे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है कि नहीं, फंक्शंस क्या है, एक्सेट्रा। कुछ बेसिस पे आउटलाइन किया गया। सेकंड वॉज जय इलेक्शन केस। इसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को टेस्ट नहीं, इसको पूरा प्रॉपर्ली डिफाइन कर दिया गया, और पोटेंशियल पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट और पोटेंशियल गेन्स भी अगर हो रहे हैं आपको, तो वो भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आ जाएंगे। नेक्स्ट केस आ रहा है इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ का, जो क्योटो लॉन केस में। इसमें बता तीन बातें हैं इसमें, 1, 2 और 3। तो स्पीकर का जो ऑर्डर है डिफेक्शन के लिए, दैट इज सब्जेक्ट टू जेआर, जुडिशियल रिव्यू। फर्स्ट पॉइंट, इसको अपन एरियल में भी डाल सकते हैं, तो स्पीकर रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें भी डाल सकते हैं। सेकंड, बट कोर्ट्स jurisdiction starts only after the passage of order by speaker. स्पीकर जब अपना ऑर्डर पास करेगा उसके बाद कोर्ट की jurisdiction स्टार्ट होगी। तो सेपरेशन ऑफ पावर मेंटेन कर रहा है। जब तक स्पीकर ने ऑर्डर पास किया, अभी ये पार्लियामेंट या फिर असेंबली के डोमेन में, जब ऑर्डर पास हो गया अब जुडिशरी इसको रिव्यू कर सकती है अगर कोई अप्लाई करेगा। Third aspect is 10th schedule does not violate any right to freedom of speech of MP under 105 और 94 इससे इसने बोला था। तो ये पॉजिटिव ऑफ जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसको इन्हें रखा था, जो 10th शेड्यूल है वो कोई वायलेट नहीं करता है ऐसे कोई फ्रीडम, ये जरूरी है फिलहाल। तीन बातें हो गई इस केस लॉ में। अलग इसके बाद एक केस लॉ है मणिपुर असेंबली केस, या आप एडीएल स्पीकर को इसमें लिख सकते हैं। मणिपुर असेंबली केस में बेसिकली स्पीकर ने डिसीजन लेने में काफी टाइम लिया था फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सम मेंबर। तो उस केस में बोला था कि सुप्रीम कोर्ट को, इसका एक और नाम है केशव मेघचंद्र केस, ईशम मेघचंद्र केस। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल टू डील विद द मैटर्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर आर्टिकल 10, इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल होने से तो उसको डील करे। अभी क्या है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है, तो स्पीकर के पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उसको एज अ बायस पोस्ट देखा जाता है, बिकॉज उनका डायरेक्ट लिंक होता है पार्टी से। सेकेंड में बोला था कि रीजनेबल टाइम फ्रेम में डिसाइड करना चाहिए। ऐसा क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट ने? बिकॉज जो अपन ने अभी ऊपर देखा, कोर्ट का जुडिक्शन पासिंग ऑफ ऑर्डर के बाद ही होता है। यूजुअली स्पीकर से क्या करते हैं, ऑर्डर पास ही नहीं करते, डिस्क्वालिफिकेशन होल्ड करके रखते हैं फेवर करने के लिए। फिर तो ऐसे ऑर्डर में बोला कि रीजनेबल टाइम फ्रेम में होना चाहिए। नेक्स्ट केस लॉ है यूसीसी आर्टिकल 44, यहाँ पर डाल सकते हैं। शाह वाला केस उन्होंने बोला था कि कॉमन सिविल कोड विल हेल्प कॉज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, ये उन्होंने बोला था इस केस लॉ में। इस यूसीसी को अपने को सपोर्ट करना है तो अपन ये आर्गुमेंट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डिनेंसेस। ऑर्डिनेंसेस में आया था लीगैलिटी ऑफ रिपीटेड रिप्रोमल्गेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था पहले, तो उसमें अपन डीसी वार्ता केस सोल्व करेंगे। रिपीटेड रिप्रोमल्गेशन है, इट इज क्लियरली contrary to the constitutional scheme and it has to be used in only extraordinary situation. फिर आरसी के ऊपर केस था, उसमें था satisfaction can be questioned on the grounds of being nullified. जुडिशियल रिव्यू की बात करी थी, जुडिशियल रिव्यू में आएगा। ये दो केस लॉ इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आरसी के ऊपर केस एंड डीसी बात करते। ये आर्टिकल्स हैं 123 और 213 ऑर्डिनेंस रिलेटेड। यूजुअली अपने को ट्राई करना चाहिए अपन स्टेट वाला सेक्शन का गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों के आर्टिकल सोल्व करें अगर क्वेश्चन में आया। नेक्स्ट आगे इलेक्टोरल रिफॉर्म से केस, एडीआर 2021 का केस था। जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, इसमें अभी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग भी चल रही है। इसमें बोला था कि पॉलिटिकल पार्टीज जो डोनेशन रिसीव करते हैं बीच के थ्रू, उसकी डिटेल्स उनको ईसीआई में देना, ईसीआई को सबमिट करना पड़ेगी पॉलिटिकल पार्टीज को इन अ सील्ड कवर। बीएडीआर बैडर ऐसे करके आप ला सकते हैं। बी से इलेक्टोरल बॉन्ड्स, बी से बॉन्ड्स और एडीआर से एडीआर केस। तो जो डोनेशन मिल रहे हैं ईबीज के थ्रू, उसको आपको ईसीआई को सबमिट करना पड़ेगा ना सील्ड कवर। नेक्स्ट पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन 2018, political parties have to submit criminal details of their candidates, have to publish criminal details of the candidates, उनका क्या बैकग्राउंड है, तो उस तरीके से इन्फॉर्म चॉइस ऑप्ट कर सकता है वोटर। तो पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन, पब्लिक के इंटरेस्ट में क्रिमिनलाइजेशन बताओ, उनका क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड, पब्लिक इंटरेस्ट में पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन, ऐसे याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट केस इज एस सुब्रमण्यम बालाजी,
तो ये फ्रीबीज के केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था फ्रीबीज शेक द रूट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्रीबीज अभी काफी न्यूज में, क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड था इस पे। तो फ्रीबीज शेक द रूट एंड ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये अपन सुब्रमण्यम बालाजी केस में लिख सकते हैं, तो इससे थोड़ा वेटेज मिलता है अपने आंसर में। इन्हें डायरेक्ट किया था इलेक्शन कमीशन को टू फ्रेम द गाइडलाइंस फॉर रेगुलेटिंग द कंटेंट्स ऑफ द मैनिफेस्टोज रिगार्डिंग द फ्रीबीज। एस सुब्रमण्यम बालाजी, साउथ इंडियन नेम है, साउथ में भी फ्रीबीज कल्चर है, तमिलनाडु और दूसरे कर्नाटक ऐसे स्टेट्स में, तो उस तरीके से आप याद रखते हैं। एस सुब्रमण्यम बालाजी साउथ इंडियन नेम है थोड़ा। पीयूसीएल केस में राइट नॉट टू वोट, नोटा लेके आए थे इसमें। लिली थॉमस केस भी अभी न्यूज में था, बिकॉज ऑफ अ प्रोमिनेंट एमपी जो जिनको कन्विक्ट कर दिया था फॉर 2 years। अगर आप 2 years या उससे ज्यादा कोई केस में कन्विक्ट कर जाते हो तो आप मेंबरशिप लूज कर दोगे इमीडिएटली। ये इस केस में था, लिली थॉमस केस में। नेक्स्ट है प्रिजन रिफॉर्म्स केस। सैट बिठाना, प्रिजन में बिठा दिया सत्येंद्र कुमार केस, इस तरीके से याद रखेंगे उसको। गाइडलाइन दिए थे रिगार्डिंग द ग्रांट ऑफ बेल, urging government to enact a separate law to streamline the process। प्रिजन रिफॉर्म्स भी अभी काफी न्यूज में थे। उसके लिए इस केस लॉ उन्होंने बोला था 2022 में कि आप गाइडलाइंस स्टैब्लिश करे थे और गवर्नमेंट को अर्ज किया था कि आप एक सेपरेट लॉ बनाओ इसको स्ट्रीमलाइन करने के। सेकेंड एस्पेक्ट उन्होंने बोला था कि हाईकोर्ट को डायरेक्ट किया था टू लुक फॉर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड देयर बेल। उनके रिगार्डिंग आपको देखना चाहिए डिटेल में क्या मेजर्स उनके ले सकते हैं जो अंडर ट्रायल हो, ताकि उनको लीगल मेथड से जस्टिस मिल पाए। नेक्स्ट है पुलिस रिफॉर्म। गवर्नेंस में आ सकता है, सिक्योरिटी टॉपिक में आ सकता है, पुलिस रिलेटेड की क्वेश्चन आता है। प्रकाश सिंह केस 2006 क्रिमिनल जस्टिस क्वेश्चन में आ सकता है, क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो मैं बोला था कि स्टेट सिक्योरिटी कमीशन होनी चाहिए स्टेट लेवल पे, वन। सेकेंड उन्होंने बोला था ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस चीफ एंड मस्ट हैव अ फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 2 years। उन्होंने सजेस्ट किया था कि इन्वेस्टिगेशन वर्क और लॉ एंड ऑर्डर दोनों को सेपरेट कर दो और एक न्यू पुलिस एक्ट बनाओ जिसे रिफ्लेक्ट डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। तो प्रकाश सिंह केस में कुछ बातें रखी गई थी इसमें। ह्यूमन जस्टिस के केस में, पुलिस के केस में अपन सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टीएसआर सुब्रमण्यम केस। इसमें सिविल सर्विस रिलेटेड है। सिविल सर्वेंट जो है इट इज नॉट बाउंड टू फॉलो द ओरल डायरेक्टिव्स। ओरल डायरेक्टिव्स को फॉलो बाउंड नहीं है सिविल सर्वेंट, अगर उसको सकता है तो रिटर्न में ले सकता है। उसको आप एथिक्स की कोई केस स्टडी वगैरह में यूज कर सकते हैं इस पॉइंट को। सेकेंड नंबर था सिविल सर्वेंट इज अकाउंटेबल टू बोथ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एज वेल एज द पीपल ऑफ द कंट्री। आपको कोई जस्टिफाई करना है कोई केस स्टडी में एक्शन, तो आप बोल सकते हो सिविल सर्वेंट इज आल्सो अकाउंटेबल टू द पीपल एज स्टैब्लिश्ड बाय द टीएसआर सुब्रमण्यम केस एंड does not have to follow the oral direction। मतलब था मिनिमम टेन्योर, तो ये आप यूज कर सकते हैं मिनिमम टेन्योर ऑफ सर्विस सिविल सर्वेंट। गवर्नेंस में सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के केस में आप एक पॉइंट बना सकते हैं इसमें। ये है विजय मदन लाल चौधरी केस अभी आया था। इसमें जो ईडी है इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, उसको पीएमएलए के थ्रू काफी पावर्स कंफर किए गए थे ताकि वो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे हीनियस क्राइम को कंट्रोल कर पाए। इस तरीके से हम देखें तो ईडी की विजय हुई, उसके बाद पावर्स को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया। ईडी की विजय हुई, तो विजय मदन लाल चौधरी, ईडी की विजय हुई। नेक्स्ट है इसमें श्याम नारायण चौकसी केस। इसमें था कि जुडिशियल ओवररीच और फंडामेंटल ड्यूटी दो एरियाज में अपन ले सकते हैं। इसमें कोर्ट ने डायरेक्ट किया था सारे सिनेमा हाउस को टू प्ले नेशनल एंथम एट द स्टार्ट ऑफ मूवीज। तो इसमें एज अ फॉर्म ऑफ जुडिशियल ओवररीच भी देखते हैं कुछ लोग, और फंडामेंटल ड्यूटी है अपनी रिस्पेक्ट करना है एंथम वगैरह को, तो उसको इम्पोज करना भी। तो इम्पोज नेशनलिज्म केस को देखा जाता है, श्याम नारायण चौकसी केस। नेशनल एंथम सिनेमा इस टाइप का केस है, इम्पोज नेशनलिज्म, जुडिशियल ओवररीच में अपन डाल सकते हैं। नेक्स्ट है अपना ये सफाई कर्मचारी आंदोलन। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एबॉलिशमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, एमएस मतलब मैनुअल स्कैवेंजिंग, एंड आस्क फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ सच वर्कर्स। सोशल जस्टिस का कोई क्वेश्चन है, एथिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है, तो कुछ नॉर्मल इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट छोटे छोटे केस लॉस में है। बलवंत सिंह केस में बोला था
जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, इट मस्ट बी इन द पब्लिक इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट को या दूसरे इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए नहीं होगा, सो इट शुड बी एक्चुअली पब्लिक इंटरेस्ट। तहसील पुना वाला केस है, मॉब लिंचिंग से रिलेटेड है। इसमें होता है ड्यूटी ऑफ इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द सिटीजन। कोई मॉब लिंचिंग केस आता है, क्वेश्चन आता है, तो आप उसमें आपको तहसील पुना वाला केस मिलेगा। नेक्स्ट है विनीत नारायण केस। इसमें हुआ था सीबीआई इज अ केस पैरेंट। इसमें रिफॉर्म जोड़े थे, मिनिमम 2 ईयर टेन्योर होना चाहिए, और डीओपीटी should not interfere in the day-to-day functioning of the CBI. DOPT जो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल ट्रेनिंग, इसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए सीबीआई। विनीत आर के इसमें सीबीआई इज अ केस पैरेंट। नेक्स्ट है पीएन दुआ केस। इसमें बहुत है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, इफ इट्स अ मेयर क्रिटिसिज्म तो देन इट विल नॉट बी अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई ग्रेड क्वेश्चन आता है, उसमें कर सकते हैं कि मेयर क्रिटिसिज्म विल नॉट बी अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये पीएन दुआ केस हमारा सिंपल छोटा छोटा फॉर्म था। इस पार्ट को अपन यही ब्रेक करते हैं। काफी सारे केस डिस्कस करेंगे स्मॉल स्मॉल समरी के फॉर्म में। आई होप ये कंटेंट रेलेवेंट लगा होगा। हो सकता है जो फर्स्ट टाइम पॉलिटी पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा बाउंस टाइप किया है, बट ग्रेजुअली आप जब रिवाइज करोगे अपना कंटेंट और फिर इसको एब्जॉर्ब करके अपने आंसर में यूज करोगे, तो डेफिनेटली आपका एज अ फॉर्म ऑफ वैल्यू एडिशन आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे क्वेश्चन। और बेस्ट वे इसको पढ़ने का वही है, सिंपली आप इसको रिवाइज कीजिए, बार बार सुन के खुद के फॉर्म में लिख लीजिए और ट्राई करिए अप्लाई करने का इसको बेस्ट वे। तो इसको यहीं ब्रेक करते हैं एक पार्ट को। सेकंड पार्ट में दूसरे केस पर डिस्कस करेंगे। 2022 में जो और नए केस बताया उनको भी। आपको कोई फीडबैक हो तो आप प्लीज शेयर कीजिएगा कमेंट में, इसको और कैसे बेटर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।